Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. I'm Professor Manzoor Shah, Head of English Department in Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start our first lecture about the first poem, The Rain, written by W.H. Davies. Every one of you knows that rain is a blessing of Allah Almighty. It's a beautiful, thought-provoking and heart-touching poem written by W.H. Davies. ये W.H. Davies की लिखी हुई एक खूबसूरत poem है. Dear students, before starting the poem, let's have a short introduction to the poet. W.H. Davies is an English poet. His favorite themes were nature, the observations of hardships of the poor, and his own adventures of life. Dear students, the theme of the poem will give you a short introduction to the poem, The Rain. The poem is a musical display of rain, a great phenomenon of nature. ये जो नज़्म है ये एक खूबसूरत मौसीक़ियत का इजहार है जो बारिश की सूरत में है और एक मजहर कुदरत है फितरत का. It has a symbolic meaning. इसके इलामती मायने भी है. The leaves of on the upper level get the raindrops first and quench their thirst. जो दरख्त के ऊपर वाले पत्ते हैं जिन पर बारिश के कतरे पहले गिरते हैं वो अपनी प्यास को पहले बुझाते हैं. Afterwards, they pass on the drops to the leaves at the level beneath. और फिर उसके बाद बारिश के जो कतरे हैं ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले पत्तों की तरफ मुंतकिल होते हैं. These lines may offer a metaphor as well. ये जो नज़्म की लाइनें हैं वो एक इस्तारा बताती हैं. The rich at the upper level get a golden chance first and whatever remains trickles down to the people at the level beneath. कि जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो माशरे की एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज दे रखी हैं, फिर वहां से कतरा दर कतरा यानी कि थोड़ा थोड़ा गरीबों तक मुंतकिल होता है. However, the scene of the sunshine afterwards is lovely and a source of pleasure to everyone of us. बारिश के रुक जाने के बाद जो धूप का मंजर है वो बड़ा ही खूबसूरत है और हमारे लिए खुशी का बाइस है. Dear students, let's start the poem, The Rain. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. I hear leaves drinking rain. शायर कहता है मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूं. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. शायर कहता है मैं दरख्त के ऊपर वाले पत्तों को बारिश का पानी कतरा कतरा निचले पत्तों को देते हुए सुनता हूं. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. इन सरसब्ज पत्तों को करीब से पानी पीते हुए सुनना खुशगवार शोर है. And when the sun comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. And when the sun comes out, और जब बारिश के थम जाने के बाद सूरज निकलेगा, a wondrous light will fill each dark round drop. तो एक गैर मामूली यानी हैरान कुन रोशनी स्याह और गोल कतरों को भर देगी. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. शायर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि सूरज आबोताब से चमकेगा और ये मंजर सुहाना होगा. What the poet wants to say, शायर कहना क्या चाहता है. यहाँ सूरज से मुराद एक ऐसे लीडर से ली गई है कि जो माशरे में इंसाफ लाएगा, जस्टिस सारे को प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए शायर पुर उम्मीद है. Dear students, after completing the poem, let's understand its words, meanings and synonyms. Rich leaves, fully wet leaves, ऊपर वाले पत्ते जो बारिश से भीगे हुए हैं. On top, at the top, सबसे ऊपर. Beneath, below, under, नीचे. Sweet, cheerful, pleasant, melodious, खुशगवार. Come out,
appear, arise, emerge, जाहिर होना, wondrous, feeling of wonder and delight, हैरानगी का एहसास, round drop, drops of rain, बारिश के कतरे, shine, चमकना, sparkle, glow, bright, brilliant, dazzling, चमक, lovely, graceful, comely, beautiful, खूबसूरत, sight, scene, spectacle, a view, मंजर. Dear students, let's move towards reference to the context. ये एक स्टेंजा और चंद लाइनें हमें दी जाती हैं एग्जाम में, जिसको हमने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और सिंपल सादा इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है. I will teach you how to explain the given stanza or given lines with reference to the context. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. Dear students, सबसे पहले आपने रेफरेंस की हेडिंग दे दी है, जिसके 2 मार्क्स हैं. कैसे लिखना है? बहुत ही सादा सा अंदाज है जो आपको समझाया जा रहा है. These lines have been taken from the poem The Rain, written by W.H. Davis. रेफरेंस लिखने के बाद आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जिसका 1 नंबर है. This poem is about the rain and the conditions that prevail after the rain stops. ये नज्म बारिश के बारे में है और बारिश के रुक जाने के बाद जो हालात छा जाते हैं या हो जाते हैं उसके बारे में है. The poem carries symbolic meanings. इस नज्म के इलामती मायनी है. The poet has beautifully described lovely scene of the rain. शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ बारिश का मंजर पेश किया है. The poet says that rain is a blessing for all the creatures on the earth. शायर कहता है कि जमीन पर तमाम मखलूकात के लिए बारिश एक रहमत है, नेमत है. The poem carries a message of hope that every dark cloud has a silver lining. नस्म ये हमें एक उम्मीद का पैगाम देती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आएगा, यानी कि उम्मीद की किरण रखनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन, जिसके 2 नंबर हैं डियर स्टूडेंट्स, और जो हमने बहुत ही सादा अंदाज में अपनी लैंग्वेज में करनी है, सिर्फ उन्हीं अशार के जो हमें दिए जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि एक्सप्लेन ओनली दोज लाइन्स विच आर गिवन इन एग्जाम्स. These lines are thought provoking and have many layers of meanings. ये जो लाइंस जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, ये थॉट प्रोवोकिंग है, फिक्र अंगेज है और इसके मुख्तलिफ मायने हैं. द सरफेस मीनिंग इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और बज़ाहिर इसको समझना बहुत ही आसान है. However, the hidden meaning is somewhat complex for a common reader. और एक आम कारी के लिए इसके छुपे हुए मायने को समझना थोड़ा सा मुश्किल है. In these lines, the poet says that he is hearing the sound of the rain falling on the upper leaves. शायर इन लाइनों में ये कहना चाहता है कि वो दरख्त के पत्तों के ऊपर गिरने वाली बारिश की आवाज को सुन रहा है. The raindrops falling on the leaves make a sweet sound, and the poet is listening to this music. जब बारिश ऊपर वाले पत्तों पर गिरती है तो एक शोर पैदा होता है, जिसको वो स्वीट साउंड, खुशगवार आवाज कहता है, और वो इस म्यूजिक से लुत्फानंदोज हो रहा है. The rich leaves on top first get the rain water and then they pass this water drop after drop to the lower leaves. सबसे ऊपर वाले पत्तों पर जब बारिश बरसती है, गिरती है या पड़ती है, तो वहां से कतरा दर कतरा निचले वाले पत्तों तक वो बारिश के कतरे मुंतकिल होते हैं. This thing even has a symbolic message, और यहाँ हमें एक इलामती पैगाम मिलता है, that rich people have more opportunities to enjoy the blessings of life. कि जो अमीर लोग हैं इस माशरे के, उनके पास जिंदगी में बहुत सारी नेमतें हैं जिसको वो इंजॉय, लुत्फानंदोज होते हैं. On the contrary, इसके बरक्स, poor people get little and in a modified form. जो गरीब लोग हैं इस माशरे के, उन्हें बहुत ही कम मिलता है और थोड़ा थोड़ा करके मिलता है. Anyhow, बहरहाल, the blessings of God reach everyone. अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें हर एक को पहुंचती हैं. The poet says that the raindrops falling on the leaves makes sweet noise. शायर कहता है कि जो बारिश के कतरे पत्तों पर गिरते हैं वो एक खुशगवार शोर पैदा करते हैं. The poet is enjoying the music created by green leaves drinking rain.
और बारिश की जो पत्तों पर गिरने की आवाज है वो एक मौसीकियत पैदा करती है और शायद उससे लुत्फानंदोज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नज्म के इख्तिताम के बाद आपको हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हैं। आपने बेटा करना ये है कि सबसे पहले इनको समझना है और अपने अंदाज से, जैसी भी आपकी इंग्लिश है, खुद से लिखने की ट्राई करनी है। कहीं गलती होती है तो आप अपने बेहतरीन टीचर से रहनुमाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 7 की भी इंग्लिश की बुक्स अवेलेबल है, हेल्पिंग बुक, और वो इतनी अच्छी लिखी गई है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ए ग्रेड इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो सवाल ये है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द रेन। इस नज्म जो कि बारिश के नाम से उन्वान है, इसका पैगाम क्या है? हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। आप बारिश के दिन को कैसे इंजॉय कर सकते हैं? व्हाट डज द पोइट हियर, शायर क्या सुनता है? व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। ये रिच और पुअर जो लीव्स हैं, ये इनसे क्या मुराद है? व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज स्वीट नॉइज, शायर के नजदीक ये सुहाना शोर कैसा है? व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, क्या वाकया होगा जब बारिश थम जाएगी? व्हाट मेक्स द सीन लवली, और क्या चीज सुहाना मंजर पेश करती है? Dear students, today we have completed our lecture on the rain. हमने नज़म रेन पर अपना लेक्चर इख्तिताम किया है। See you next time. अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।